Dear students, in the subject Object Oriented Programming Methodology, we will learn something about the object oriented concepts, and these include classes, objects, data abstraction, data encapsulation, polymorphism, inheritance, dynamic binding, and message passing. So we will learn something about the very first topic, that is class. So before moving further, we will try to understand about the structure which comes under the C programming, because we will convert the program of structure into the class. So let's go ahead, and I am now trying to make the program of structure using the C programming. So for making the structure, first of all I am just including the header file, include std io.h. This is the header file which is used for C programming. Then I am using the main function. Inside main function, suppose I am taking some variable, let's suppose integer I, and I am initializing the value of I with 5. Then I am just trying to update the value of I with 6, and now suppose 7, and then I will trying to print the value of I. So I am writing inside double quote a value of I, and you must be knowing this thing. For displaying the value in C programming, I can use format string, and %d is the format string for displaying the integer values. So here the name of variable, that is I, and before making the compilation and execution of this particular program, I need to include another header file that is called as conio.h. Why I am using this particular header file? Because I just want to hold my output screen, and for holding the output screen I need to use getch function. It will take some character from the user and will hold the output screen in this particular software. I am using the Borland Turbo C++ software, and the version name is 5.1. So let's run this particular program. So for running this program, I am using the debug option from here, and you can run Control F9 is the short key for running this particular program. So let's try to run this, and before going ahead, just check it whether I am getting some errors. So error is the call to undefined function print. Okay, I need to use printf, so I'm using printf here. In Python you can just use only print. So again I'm going to run this program, and you can observe that I'm just getting the output screen over here, and the value of I is 7. So you must know this particular integer variable is the ordinary variable which is not capable of holding more than one value at a time, and if I am trying to store more than one value, it will just display the latest, or I must say the current value of the variable. So this is the updated value. I can say this is the updated value of I, and I must say this is the initial value. I can say this is the variable initialization, or I can write here initial value ऑफ आई. सो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, सो आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम, okay, after running this program, आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 7. तो ये जो लेटेस्ट वैल्यू है या करंट वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है. नाउ सपोज आई एम टेकिंग अ सिनेरियो, suppose I am taking the MST exam of the a particular class which is having the 60 plus students, and suppose मैंने इन 60 स्टूडेंट की एग्ज़ाम ली, एंड इन सब के मार्क्स मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्डिनरी वेरिएबल में स्टोर करने हैं.
तो जब मैं इस अप्रोच को यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम की हेल्प से कि आई विल बी एबल टू स्टोर ओनली द लेटेस्ट और द अपडेटेड वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल आई। सो उस केस में ये वाली अप्रोच फेल हो जाएगी, मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑर्डिनरी वेरिएबल से स्टोर नहीं कर पाऊँगा। सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आई कैन यूज़ दी अरे। अब अरे हम कैसे बनाएंगे एंड उसको कैसे उन वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले करेंगे वो हम एक सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं। सपोज आई एम मेकिंग इंटीजर अरे, सो इंटीजर इज़ द डेटा टाइप ऑफ द अरे एंड नेम ऑफ द अरे ए, और इसका जो सिंबल है ये पर्टिकुलर सिंबल है एंड इक्वल लगाकर मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ इनिशलाइज करनी पड़ेगी। सपोज आई एम गिविंग 10, 20, 30, 40, 50. So these are the 5 members of this particular array. I can say these are the elements of this array which is named as capital A. Now आप देख सकते हैं मुझे इनमें से किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना है तो अरे की इंडेक्सिंग always start from 0. I mean to say, if suppose I am writing like this a of 0, okay, so this will denote that I just want to use this particular value, that is 10, because ये 10 जो वैल्यू है ये अरे के 0th इंडेक्स पर स्टोर होगा, तो इसी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पर। सो आई हैव टू यूज़ printf एंड यहाँ पर मैं इसको परसेंटेज डी की हेल्प से इस इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवा पाऊँगा जो कि अरे के 0th इंडेक्स पर स्टोर हो रही है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। You can see I am getting the very first value which is stored on the 0th index, that is 10. और भी सारी वैल्यूज़ को मुझे डिस्प्ले करना है, so I can do like that, but before proceeding I have to use backslash n, because with the help of backslash n I can print every statement in the next line. So मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इनके इंडेक्स को चेंज कर देंगे। आई एम हैविंग दी 5 वैल्यूज़ इनसाइड दी अरे, सो इंडेक्सिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो ये इंडेक्सिंग जो है ये 4 तक जाएगी। हमेशा जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे एक कम तक इसका इंडेक्स वैल्यू जाता है, सो लास्ट इंडेक्स विल बी 4। सो लेट्स रन दिस। यू कैन सी कि मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो पा रही है। आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ये सारी वैल्यूज़ आ रही है। आप चाहते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ डिस्प्ले भी करना है और मुझे बार बार प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ न करना पड़े, सो आई कैन यूज़ फॉर लूप ओवर हियर। सो कैसे यूज़ करेंगे देखिए आप लोग। फॉर लूप का जो वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा, सपोज आई एम टेकिंग इंटीजर आई, नाउ आई एम मेकिंग द लूप, सो आई इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस थिंग, इंडेक्सिंग ऑफ अरे इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, सो फॉर लूप भी 0 से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा और इसका जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे एक कम चलेगा। सो आई कैन राइट हियर आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। नाउ इस लूप की बॉडी बना देते हैं और बॉडी बनाने के बाद में इतने प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ मुझे नहीं करने होंगे। मैं सिंपली एक सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट नहीं करेगा, इट विल रन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल ऑफ फॉर लूप। तो मैंने फॉर लूप का वेरिएबल जो आई है उसकी हेल्प से ये रन होगा। आप देख सकते हैं आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट होगी और इसकी वैल्यू 4 तक चलेगी, बिकॉज लेस देन 5 मैंने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लाइन फिर उस टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट्स ट्राई टू रन दिस। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और आप देख सकते हैं कि अब प्रिंटफ स्टेटमेंट मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यूजिंग द फॉर लूप आई एम जस्ट ट्राइंग टू print the statement or print the value of array again and again for 5 times.
सो इस तरह से मैं सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर पा रहा हूँ। अब इसी को उस सिनेरियो से रिलेट करते हैं जो मैंने सेशन के स्टार्ट में बताया था कि मैं किसी क्लास के सपोज 60 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ। तो आप इस लूप को 0 से 59 चला सकते हैं एंड सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ये जो लिमिटेशन थी हमारी ऑर्डिनरी वेरिएबल की, जो कि एट ए टाइम एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर पा रहा था, लेटेस्ट वैल्यू को होल्ड कर पा रहा था। तो इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक स्पेशल वेरिएबल यूज़ किया एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेशल वेरिएबल इज़ दी अरे। बट आप यदि क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर भी अरे की भी एक लिमिटेशन है एंड अरे की लिमिटेशन ये है कि आप देख सकते हैं ये जितनी भी वैल्यू को होल्ड कर रहा है ये सारी वैल्यू सेम टाइप की है। 10, 20, 30, 40, 50 ये सारी इंटीजर वैल्यू है। मतलब अरे जो है ये सिमिलर वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है, सिमिलर टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होता है। सो हम यहाँ पर अरे को डिफाइन भी कर सकते हैं कि अरे इज़ दी कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है। सो अरे की भी यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि ये सेम टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर पाएगा। हम फिर से एक और सिनेरियो लेते हैं। सपोज आरजीपीवी का रिज़ल्ट आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आता है, किसी सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं या कंप्लीट रिज़ल्ट आता है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर वी कैन हैव दी मेनी इन्फॉर्मेशन एट वंस। मतलब स्टूडेंट का नाम भी अवेलेबल है, उसका जेंडर अवेलेबल है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका सेमेस्टर, उसका कॉलेज का नाम, कॉलेज का कोड, उसके सब्जेक्ट्स का नाम, सब्जेक्ट का कोड एंड उसके मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम टाइप की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन इंटीजर टाइप की है तो इस तरह से मैं उसको डील कर लूँगा। तो हेट्रोजीनियस डेटा का केस हो गया ये, और हेट्रोजीनियस डेटा पर ये अरे वाली ये जो अप्रोच है ये फेल हो जाएगी। सो इस अप्रोच को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस लिमिटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आई विल यूज़ अनदर कंसेप्ट जो इस लिमिटेशन को ओवरकम करेगा एंड दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। तो अब मैं इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में कन्वर्ट करने वाला हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट्स वेरी सिंपल।